Welcome to this Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today we'll also be taking calls from you on mutual fund and related issues. The number to call us on is 2371-7106. I repeat, the number is 2371-7106. And if you're calling from outside Delhi, please prefix 011. If you're using a mobile phone to call us, again, prefix 011. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Subodh Mishra. नमस्कार श्रोताओं, कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को कार्यक्रम में शामिल करेंगे। सवाल पूछने के लिए आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 2371-7106। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद। पहले हेडलाइंस के साथ वी रवि कुमार। India worshipped the sun for centuries, now has become one of the leading countries in solar power generation, said Prime Minister Modi in his radio program Mann Ki Baat. And FPIs have invested over 15,000 crore rupees in Indian market so far this month. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में कहा, भारत सदियों से सूर्य की पूजा करता रहा है और सौर ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणी देश भी बन गया है। और विदेशी निवेशकों ने इस महीने अब तक भारतीय पूंजी बाजार में 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। Prime Minister Narendra Modi today asserted that India has become one of the leading countries to generate electricity from solar energy. Addressing the nation in his Mann Ki Baat program on All India Radio this morning, the Prime Minister said the whole world is looking at solar energy as the future. He stressed that India is combining her traditional experience with modern science in this field. He further stated that solar energy is changing the lives of the poor and middle class of the country. Mr. Modi said the sun has not only been worshipped for centuries in India, but has also been the focus of the way of life of the people. He cited the example of Thiru K. Ezhilan of Tamil Nadu, who is a farmer. Thiru Ezhilan took the benefit of Kusum Yojana and installed a solar pump set of 10 horsepower in his farm. Now, they do not have to spend money on electricity for their farm. The Prime Minister gave the example of another beneficiary of PM Kusum Yojana, Rajasthan's Kamalji Meena, installed a solar pump in the field due to which his expenses have come down. He spoke about the country's first solar village, Modhera of Gujarat. He exuded pride that most houses in Modhera Suryagram have started generating electricity from solar power. He expressed confidence that the day is not far when the construction of Suryagrams in India will become a big mass movement. And the first caller of the day, Mufizul Haq from Howrah, West Bengal, is online with us. Haq Saab, welcome to Market Mantra. Please put your question. हाँ, सवाल पूछें हक साहब, हम सुन पा रहे हैं आपको। मैं हावड़ा वेस्ट बंगाल से शेख मफीजुल हक बोल रहा हूँ। हाँ जी, बोलिए। तो मैं म्यूचुअल फंड में थोड़ा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो किसमें थोड़ा बोलने से अच्छा होता है? आप कितना निवेश करना चाहते हैं और कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं? तो 1 साल के लिए, 1 ईयर के लिए और 10,000। 1 साल के लिए 10,000 रुपए लगाना चाहते हैं। जी, धीरेन्द्र जी, कोई सलाह देना चाहेंगे? जी, मेरी सलाह होगी कि इनको किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा लगाना चाहिए। इसमें इनका पैसा बचा, इसमें गिरावट की संभावना नहीं होगी। बैंक डिपॉजिट से थोड़ा बेहतर रिटर्न मिल पाएगा। मुझे 3-4 फंड अगर गिनवाना हो तो एक्सिस का शॉर्ट टर्म डेट फंड, HDFC का शॉर्ट टर्म डेट फंड, IDFC का शॉर्ट टर्म डेट फंड, इनमें से किसी एक में अपना पैसा लगाएं। तो हक साहब, ये है हमारे एक्सपर्ट की राय। एक्सिस शॉर्ट टर्म डेट फंड, HDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड या IDFC शॉर्ट टर्म डेट फंड में से कोई भी एक चुन लें आप, और 1 साल के लिए अपने 10,000 रुपए का निवेश आप कर सकते हैं। So these are the questions that people have, that they want one clear answer. I know you abhor that kind of clarity and you want them to put in the effort to kind of do the research. While we look about that, we have our second caller. जी, भारत भूषण है हमारे साथ दिल्ली से। भारत जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। धीरेन्द्र सर को भी नमस्कार है। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाहता था, जैसे कि कोई ऐसा लिक्विड फंड बताइए सर, जिसमें कि सौर ऊर्जा या रिन्यूएबल ऊर्जा का शेयर के ज्यादा क्या कहते हैं हिस्सेदारी हो, इसमें वेटेज हो। धन्यवाद सर।
नहीं, ऐसा कोई लिक्विड फंड नहीं है। लिक्विड फंड केवल मनी मार्केट या डेट इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाते हैं जिसका बहुत कम मैच्योरिटी होता है, और अधिकतर कॉम्बिनेशन होता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स का या कुछ बैंकों की सीडी सीपीज इसमें होते हैं, कमर्शियल पेपर या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होता है। तो आपको सोलर एनर्जी ड्रिवन या उस तरह का फंड चाहिए तो वैसे इक्विटी फंड होते हैं। लिक्विड फंड इस तरह का कोई भी उपलब्ध नहीं है। But if you had to suggest an equity fund for him which invests in solar energy or renewable energy, is there any such fund available? Yeah, we have many funds which have some exposure, but not a defined or not by its very design. So I'm not in a position to actually make him a very clear recommendation about a fund which is dominantly invested in renewable energy. अगले कॉलर है पश्चिम बंगाल से अभिषेक। स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। हफ्ता वेट किया तो मौका मिला है, 2-3 क्वेश्चन जरूर करूंगा। जी जी जरूर पूछें। नंबर 1, कैनरा रोबोको स्मॉल कैप फंड वर्सेस निपुण इंडिया स्मॉल कैप फंड, ये दोनों का पास्ट ईयर का रिस्पांस और लॉन्ग टर्म में ये दोनों को कैसे देखते हैं आप 5 साल के लिए? मेरा सेकंड क्वेश्चन, 2 या 3 म्यूचुअल फंड अगर कोई रखता है फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप और उसमें कितना ओवरलैप, मतलब दोनों कॉमन हो रहा है स्टॉक्स, सही है? और तीसरा है क्या दोनों को लेके, ये दोनों जो उसका बात किया, दोनों को रख के खरीद कर 5 साल के लिए रखना ठीक है या एक को? थैंक यू जी। और निपॉन का स्मॉल कैप और दूसरा स्मॉल कैप जो आपने बताया, ये दोनों ही, कैनरा रोबेको का स्मॉल कैप, ये दोनों ही अच्छे फंड है। एक चीज जो कि आपको ध्यान में रखना चाहिए कि स्मॉल कैप बहुत जबरदस्त जब गिरते हैं तो बहुत गिरते हैं, और 5-7 साल की अवधि में ये दोनों फंड्स का प्रदर्शन आपने देखा होगा। और इस तरह के फंड का प्रदर्शन हर 6 महीने, हर 1 साल में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि गिरावट के दौर में ये गिरते हैं और उससे ज्यादा कॉम्पनसेट कर देते हैं जब बढ़त का दौर आता है। और अगर छोटी अवधि में ये अच्छा नहीं करते हैं तो उसे गौर से नहीं देखना चाहिए। और स्मॉल कैप फंड्स में अगर आप 5-7 साल के नजरिए से SIP कर रहे हैं तो इसमें आमतौर पे अच्छा खासा फायदा होता है किसी मल्टी कैप और इसके तुलना में भी, और ये दोनों अच्छे फंड हैं। दूसरा रहा ओवरलैप आपके फ्लेक्सी कैप फंड्स का और स्मॉल कैप फंड का, ये अपनी सुविधा अनुसार कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपके फ्लेक्सी कैप, आमतौर पे जो आप ओवरलैप की बात कर रहे हैं वो फ्लेक्सी कैप फंड्स में ही होता है, क्योंकि एक उनकी लाचारी है, जैसे जैसे फ्लेक्सी कैप बड़े होते जाते हैं उनकी लाचारी होती है कि वो बड़ी कंपनियों में ही पैसा लगाएं, क्योंकि वहीं पे लिक्विडिटी है और उतना बड़ा पैसा उन कंपनियों में ही एब्जॉर्ब हो पाता है। छोटी कंपनियों से एक बहुत बड़े फंड करके फ्लेक्सी कैप फंड का छोटे स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसा लगाना मुश्किल होता जाता है। तो इस तरह का ओवरलैप आपको दिखेगा। इसलिए आमतौर पे आपकी ये सोच होनी चाहिए कि अगर आप केवल फ्लेक्सी कैप में लगा रहे हैं तो बहुत बड़े ना हो, क्योंकि जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनका चार्म खत्म हो जाता है, इनके लिए ये लार्ज कैप हो जाते हैं, और लार्ज कैप जब हो जाते हैं तो इनका जो खर्चा है वो काफी ज्यादा होता है। और लार्ज कैप इंडेक्स फंड में आप पैसा लगाए तो सबसे पहले तो आपको 8% का एडवांटेज होता है कि अगर ये फंड अच्छा करेंगे और 1-1.25% ज्यादा करेंगे तो इंडेक्स फंड के रिटर्न को मैच करेंगे, उसके बाद कभी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इनके लिए इंक्रीजिंगली ये अच्छा करना मुश्किल हो जाता है इंडेक्स की तुलना में, और ये विकल्प आज निवेशकों के पास बहुत आसानी से उपलब्ध है। तो उस तरह के फंड्स में, छोटे फंड में पैसा लगाएं, और स्मॉल कैप और फ्लेक्सी कैप फंड का जो पोर्टफोलियो है उसमें आमतौर पे बहुत कम ओवरलैप होता है और इसमें जरूर रखना चाहिए। अगर आप स्मॉल कैप के उतार चढ़ाव से आप अगर रिकनसाइल कर चुके हैं, उसके आदी हो चुके हैं, उससे बहुत घबराहट नहीं होती है, तो शुरुआत कीजिए थोड़े से और वो बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि आपको स्मॉल कैप मिड कैप आपको इंक्रीजिंगली फ्लेक्सी कैप फंड में उसका एलोकेशन आपको अच्छे सक्सेसफुल फंड में वो आमतौर पे कम मिलेगा। Our next caller is from Delhi. Gautam from Delhi is online with us. Gautam, welcome to Market Mantra. Please put your question. Thank you very much for your time. वीरेंद्र सर, अगर लॉन्ग टर्म में अपनी पोर्टफोलियो में, अपने एसेट एलोकेशन में गोल्ड को इंक्लूड करना हो तो 8 से 10 साल के पैटर्न के लिए क्या आरबीआई के गोल्ड बॉन्ड्स
या फिर गोल्ड ETF, दोनों में से क्या बेटर है और क्यों? सेकंड सवाल जो कि इससे मिलता जुलता है, अगर गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में 10 से 15% का एलोकेशन देना ही है, तो क्या फिर उसमें से कुछ पोर्शन फिजिकल गोल्ड में रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी बट आई एम टॉकिंग अबाउट सिल्वर, गोल्ड कॉइन और एक्सेट्रा, और कुछ पोर्शन हमें ये गोल्ड ETF या RBI गोल्ड बॉन्ड में लेना चाहिए? थैंक यू। थैंक यू। आमतौर पे मेरी सलाह होती है कि गोल्ड में या गोल्ड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना करें। लेकिन एक ये भी सोच है कि जब इक्विटी और बॉन्ड दोनों में ही हाहाकार मचा होता है, तो सोना एक ऐसा एसेट है जो कि आपको वो रेजिलियंस देता है, या वहां वैसी गिरावट नहीं दिखती है, या वहां बढ़त दिखती है क्योंकि चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और ये सबसे ज्यादा दिखा था 2008 में। बॉन्ड बाजार गिर रहे थे, इक्विटी बाजार डूब रहा था, और उस समय केवल गोल्ड बढ़ रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद 10 साल का रिटर्न गोल्ड ETF में आज करीब 4% से कम है। तो ये बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग है। और लॉन्ग टर्म में मुझे लगता नहीं है कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, ये एक स्टोर है वैल्यू का, और जो किसी चीज से जुड़ा हुआ नहीं है। इस चीज पर निर्भर करता है कि भविष्य में लोग और कंज्यूम करेंगे और सोने की जरूरत कम नहीं होगी और इसका दाम बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये फाइनाइट क्वांटिटी में उपलब्ध है। लेकिन अगर आप कमिटेड है कि आपको गोल्ड में पैसा लगाना है, तो बेहतरीन विकल्प आपके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, क्योंकि बाकी दूसरे जो भी विकल्प हैं, चाहे आप फिजिकल गोल्ड के बारे में मुझे चिंता है कि खरीदना आसान है, क्या आप इसको बेच पाते हैं, और अगर आप बेच पाते हैं तो उसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या होता है, आप खरीदते बेचते कितने में, ये जरूर पता कर लेना चाहिए, या एक बार करके देख लेना चाहिए। 10 ग्राम गोल्ड से खरीदिए और बेचिए और देखिए कि इसका ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्या बनता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का एक खास फायदा ये है कि सोने में क्या जो दाम होगा उतना ही आपको अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन मिलेगा, पर सालाना 2.5% रिटर्न भी मिलेगा, और 8 साल की होल्डिंग पे ये टैक्स फ्री भी हो जाता है अगर आप प्राइमरी इशू में खरीदते हैं तो, और हर 2-3 महीने पे ये इशू आता रहता है। बाकी दूसरे जो भी विकल्प हैं उन सबका खर्चा है, ETF का भी खर्चा है, गोल्ड फंड का भी खर्चा है। अगर आप सोना फिजिकल फॉर्म में खरीदते हैं और ज्वेलरी में नहीं खरीदते हैं तब भी उसका खर्चा है। ये जो मैं बोल रहा था कि खरीद के और बेच के जो बाई सेल का स्प्रेड है वो देखिए किस तरह का है। और अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसको तो कंजम्पशन के तौर पे देखना चाहिए, क्योंकि जो मेकिंग चार्जेस है वो आपके पूरे रिटर्न को खत्म कर देते हैं, तो वो उसको कंजम्पशन के तौर पे देखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका 10-12% अगर आपका मेकिंग चार्जेस है या ट्रांजैक्शन कॉस्ट है या आप खरीद बेच का जो डिफरेंस है, तो उसमें आप अच्छा खासा रिटर्न तो आपका उसी में चला जाएगा। Nirendra, Abhishek before this from Kolkata had asked a question about overlap between flexi cap and small cap. Is there any tool with which we can easily find out what is the overlap, what percentage is the overlap between two funds? Yes, it's a tool, but I'll just give a disclaimer that tool happens to be my company's website, Value Research Online, where you can actually see what is the aggregate of your investment. If you put 5 funds and what is the underlying thing, you can see the changing complexion of your portfolio by addition of incremental investment. And is there a number that you say that if there is 30% overlap, 40% overlap, 40 is good, 30 is not good? Is there a number that you have in mind? No, I don't have a number in mind, but in case of FlexiCap fund, if you have 60% overlap across 2-3 funds, so basically it is a demystification exercise. If you find that there's a big overlap in your different funds, investors generally have an impression that they are getting superior diversification because they have invested in multiple funds. But when you look at this, you really understand that it is not diversification. The underlying money is invested substantially at the same place. जी, अगला सवाल लेने से पहले श्रोताओं को याद दिला दें कि आप सुन रहे हैं मार्केट मंत्र, जिसमें हम म्यूचुअल फंड्स से जुड़े आपके सवालों को शामिल कर रहे हैं, और जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड्स एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। आप हमें इस नंबर पर फोन कर सकते हैं 23717106। और धीरेन्द्र, अभी कुछ समय पहले चर्चा हो रही थी कुछ लोगों से, और अब कई लोग हमसे कुछ सीनियर रिटायर हो रहे हैं, और एक मुश्त राशि जो रिटायरमेंट में मिलती है उसके निवेश को लेकर
कई चिंताएं रहती हैं लोगों को। तो अब लंबी सेवा के बाद रिटायर हो रहे हैं और 1 करोड़ या 1.5 करोड़ की राशि मिल रही है और 3 साल तक अभी उनको कोई काम नहीं है, तो उसे कैसे निवेश करें 3 साल के लिए? आप कुछ सलाह देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये जो रिटायरमेंट का शुरुआती फेज है उसमें आप इससे एक तो आप खुश ना हो। सबसे पहले जानिए कि आप ये 1 करोड़ रुपया जो कि आपने पहले कभी इस तरह का इकट्ठा रकम नहीं देखा है, उसमें आम तौर पे आपके पास लोग आ जाते हैं बताने के लिए कि ऐसा कीजिए वैसा कीजिए और वो पैसा, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। अगर आप 60 साल की उम्र में रिटायर करते हैं और आप 90 साल की उम्र तक अगर आप जीवित रहते हैं तो आपने 30 साल काम किया है, जो कुछ भी इकट्ठा हुआ है अब आपको अगले 30 साल का इंतजाम, आमदनी का इंतजाम अपने इस निवेश से करना है। तो ये बहुत ही जरूरी पैसा है और खासकर आपका जो आपकी जो सोच है वो भी बदल जाती है जब आप रिटायर होते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा अनसर्टेन लगता है, आपको थोड़ी चिंता होती है कि अब आपकी आमदनी रुक गई है, इसी पैसे में काम चलाना है, कोई बड़ा खर्चा आ गया तो आपका बजट डावाडोल हो जाएगा। तो और इस समय और ये एक बड़ा रकम होता है, तो शुरुआत में तो मेरी सलाह होगी कि इस पैसे को किसी शॉर्ट टर्म डेट फंड में और बहुत ही कंजर्वेटिवली शॉर्ट टर्म डेट फंड में लगाइए और सबसे पहले प्लानिंग कीजिए कि आपको कितने पैसे की जरूरत होगी, क्या आपके कोई और आमदनी का स्रोत है, क्या आपको पेंशन मिलेगा, अगर पेंशन नहीं मिलेगा क्या आपको कोई रेंट मिलने वाला है, क्या आपका हेल्थ कंडीशन क्या है। सबसे पहले तो हेल्थ इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए और जल्दी लेना चाहिए। और लॉन्ग टर्म हेल्थ इंश्योरेंस हमारे यहाँ उपलब्ध नहीं है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है, लेकिन जो भी उपलब्ध है उन सारे विकल्पों में से चुन करके एक लेना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसा चीज है जो कि आपके सारे प्लानिंग को चौपट कर सकता है। अगर एक बड़ा सा खर्चा आ गया तो शॉर्ट टर्म डेट फंड में पैसा लगाइए, गहराई से विचार कीजिए, एक अच्छे सलाहकार से मिलिए, थोड़ा पढ़िए और पढ़ के ये जानकारी रखिए कि क्योंकि आपको सलाहकार भी आज बहुत आसानी से नहीं मिलेंगे जो कि आपको गहराई से समझ करके आपकी जरूरतों को सलाह दे पाए। तो इसलिए अपने आप को भी थोड़ा तैयार करना, अपने आप को प्रिपेयर करना कि आप सही सवाल पूछ पाए कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ऐसा इसके पीछे सोच क्या है, इसका कारण क्या है, ये कैसे काम करता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनिए, लेकिन आपके पैसे की चिंता आपसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। इसलिए सवाल क्या पूछना है, इसकी तैयारी तो कम से कम इसकी तैयारी जरूर करिए। इसलिए थोड़ा जानकारी रखिए कि पैसा अगर आपका बड़ा विड्रॉल रेट है, अगर आप 5-6%, 7% का लोगों को लगता है कि ये बड़ा रकम है, अगर आप 10% अपनी पूंजी का अगर हर साल कंज्यूम कर लेते हैं और उससे कम आपका रिटर्न होता है तो आपकी पूंजी कम होती रहेगी। आपको देखना है कि भले ही आखिरी 70-80 साल की उम्र तक आपकी पूंजी कम नहीं हो, उस पूंजी को वैल्यू को प्रिजर्व करना, पूंजी को प्रिजर्व नहीं करना। आपके निवेश पे इतना रिटर्न मिलना चाहिए कि आपके कंजम्पशन के बाद, आपके कुछ पैसे को निकाल के खर्च करने के बाद आपकी पूंजी थोड़ी बढ़े, क्योंकि अगर आपकी पूंजी नहीं बढ़ती है, आज आपके पास 1 करोड़ है और 5 साल के बाद अगर ये 1 करोड़ 15 लाख रुपए नहीं होता है आपके खर्चा करने के बाद तो आपके बढ़ती इनकम की जरूरत को ये पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए एक बारीक और गहरी प्लानिंग की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए सबसे पहले थोड़ी तैयारी कीजिए। जी, अगले कॉलर हैं गाजियाबाद से गौरव, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। नमस्ते माकबड़ा टीवी, नमस्ते। नमस्कार जी, सवाल पूछे। तो सवाल है कि बहुत सारे इन्वेस्टरों का भी क्या हो गया है जो 50, 55, 60 साल के हैं या 40 से ऊपर के भी हैं, जिन्होंने काफी सालों से इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कहीं अलग अलग फंड में, अलग अलग फंड हाउसेज में, अलग अलग मार्केट कैप में इन्वेस्ट हो गए हैं, स्मॉल कैप में, बिग कैप में, लार्ज कैप में, ब्लू चिप में। अब कोई ऐसा टूल है या ऐसा कोई साइट है जहाँ पे हम अपनी पोलियो डालें और वो हमें बताए कि ये आपका गलत हो रहा है या ये आपका इसमें मार्केट स्मॉल कैप में ज्यादा है बेस्ड ऑन आवर एज? क्योंकि सलाहकार इतने अच्छे नहीं है, जो इतना जानकार है जो दे पाते हैं, वो तो एक जनरल आइडिया दे देते हैं, वो इंटरेस्टेड होता है कि उसकी एसआईपी हम उसके थ्रू लगा दें। मेरी पोर्टफोलियो का रियल असेसमेंट आपकी साइट पे कोई है जिससे मैं कर पाऊँ? ये पहला सवाल है। और दूसरा सवाल छोटा सा है सर, इस स्थिति में जब मार्केट ऑलरेडी 59-60,000 के आसपास है, लेकिन कुछ जो है फील्ड काफी अभी भी दबी हुई है, तो मेरे जैसे इन्वेस्टरों को क्या वैल्यू फंड में डालना चाहिए जो 3-5 साल से अभी भी देख रहा है? वैल्यू फंड में क्या वो ऐसी सेक्टर में डाल पाएंगे जहाँ पे हमें
आने वाले 3-5 साल में अच्छी वैल्यू मिलेगी एंड आई विल गेट अ बेटर अप्रिसिएशन। सर 2 सवालों का जवाब दीजिए। मेरी सलाह, आपका दूसरा सवाल कि आपको आपका 1/3 पैसा हमेशा ही वैल्यू फंड में होना चाहिए। आजकल वैल्यू फंड अच्छे लग रहे हैं, लेकिन हमेशा ही आपका और वैल्यू फंड के विकल्प थोड़े कम हैं, इसलिए 1/3 पैसा अगर आपका उसमें लगा रहे तो ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो को रिजिलेट करता है। गिरते बाजार में आपके पोर्टफोलियो ज्यादा स्टेबल दिखता है। मुझे अभी भी ग्रोथ में काफी बड़ा विश्वास है, लेकिन ग्रोथ स्ट्रैटेजी कोई ऐसा फ्लेक्सी कैप मल्टी कैप फंड आप लेते हैं जो कि डोमिनेंटली ग्रोथ पोर्टफोलियो है, तो भी आप देखिए कि उसका लंबा हिस्ट्री हो, गिरते बाजार में गिरे नहीं। और वैसे बड़े कम विकल्प हैं, लेकिन विकल्प हैं। और आपका पहला सवाल कि कहाँ ये उपलब्ध है, ये केवल मेरे वेबसाइट पे ही उपलब्ध है, जहां पर आप अपना एक बार कैम्प या कार्वी से अपना कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट लेकर के अपलोड कर दीजिए और वो आपको क्लैरिटी से बता पाएगा कि आपके पोर्टफोलियो में कितने अच्छे फंड है, कितने अच्छे फंड नहीं है। और एक उसमें इसके साथ आपको एक अच्छे फंड का एक सिलेक्टेड लिस्ट भी मिलता है, जो कि हमारे एनालिस्ट बहुत गहराई से उन पे नजर बनाए रखते हैं और ये केवल शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के आधार पे नहीं होता। Next caller is from Delhi. Varun Dev Sharma is online with us. Varun, welcome to Market Mantra. Please put your question. Sir, good evening. Good evening. Hello. Yeah, go ahead with your question, Varun. सर मैं बहुत पुराना इन्वेस्टर हूँ, मगर मेरा साथ एक प्रॉब्लम यही है सर, जो यूएस नैस्डैक फंड में मेरा पैसा लगा हुआ जो था, तो अचानक सर वो फंड में पैसा लेना बंद कर दिया था। तो अब सर मैंने बीच में लमसम इन्वेस्ट किया था, तो अभी भी मार्केट गिरा हुआ है, मेरा पास फंड है, क्या अभी भी मैं दोबारा सर लमसम इन्वेस्टमेंट कर दूं? नहीं, इन फंड्स में पैसा लेना आप शुरू कर दिया है, धीरे धीरे ही कीजिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि नास्डैक में जिस तरह की गिरावट देखती है और ये गिरावट का दौर चल रहा है। मुझे लग रहा था कि ये गिरावट अब थम गया है, उसके बाद फिर जिस तरह से ये धाराशाही हुआ है पिछले सप्ताह अलग अलग कंपनियों में जिस तरह की गिरावट देखी गई है, ये बहुत ही अननर्विंग है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि इस वजह से एक साथ आपको पैसा नहीं लगाना चाहिए, लेकिन 2-3 फंड में अभी पैसा लेना शुरू कर दिया है। बीच में इनमें पैसा लेना, इन फंड्स ने पैसा लेना बंद कर दिया था, तो धीरे धीरे लगाइए, भले ही आपके पास पैसा एक साथ इकट्ठा हो। नोएडा से एसपीएस जैन हमारे साथ हैं, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार जी, धीरेन्द्र जी को भी नमस्कार। नमस्कार। अभी पिछले डेट फंड में पिछले 1 साल में रिटर्न 4% से ऊपर नहीं हो रहा है, और बैंक के फिक्स डिपॉजिट में भी 6% और उसमें टैक्स कटने के बाद 4-4.5% बैठता है। अभी आरबीआई के फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट उन्होंने अभी बढ़ाया है, तो इसके संदर्भ में आप कितना इसकी अनुशंसा करते हैं कि आरबीआई फ्लोटिंग रेट का बॉन्ड लिया जाए? जी हाँ, वो एक अच्छा विकल्प है, सबसे सुरक्षित विकल्प है और आज के दिन काफी आसानी से उपलब्ध भी है। आप ऑनलाइन उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन रिडीम भी कर सकते हैं, और इनका बैंक और ये बैंक से ज्यादा सुरक्षित है, क्योंकि बैंकों में पिछले 2-4 साल में कई ऐसे उदाहरण आए हैं जहाँ पे लोगों का पैसा फंसा है या रुका है या उसके बारे में आशंका हुई है। लेकिन ये तो आरबीआई के बॉन्ड है, या अगर हमारे देश का फाइनेंशियल सिस्टम सुचारू चलता रहता है या अगर स्ट्रेन में भी रहता है, तो कम से कम ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके बारे में हमें किसी तरह की चिंता नहीं होती है। लेकिन आने वाले समय में शॉर्ट टर्म डेट फंड्स भी आपको इस तरह का रिटर्न देंगे। पिछले साल रिटर्न कम होने का कारण यह है कि जो फंड्स में जो रिटर्न है, जब ब्याज दरें बढ़ती हैं तो फंड्स में गिरावट होती है, क्योंकि पुराने बॉन्ड्स के दाम गिरते हैं, और ये जो अगर हमारे इंटरेस्ट रेट स्टेबलाइज हो जाते हैं, जिसकी मुझे उम्मीद है कि ये ऐसा ही रुख है, और यहाँ पर से जो यील्ड है वो बेहतर हुआ है, इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, और इस वजह से मुझे लगता है कि उसके नजदीक आपको रिटर्न मिल पाएगा। अगर आपको बहुत हाई लिक्विडिटी के साथ
और अगर गलती से ये पैसा, कई बार हमारा डेट का इन्वेस्टमेंट ऐसा होता है कि हम निश्चिंत नहीं होते हैं कि हमें ये 3 साल के लिए है या 1 साल के लिए है या 1.5 साल के लिए है, कि पैसा लगा हुआ है शायद कभी जरूरत पड़ जाए 1 साल में 2 साल में, और कई बार वो लगा भी रह जाता है। अगर वो 3 साल लगा रह गया तो जो टैक्स इफिशिएंसी है, जो बॉन्ड फंड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है निवेशकों के लिए, तो आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि ये जो शॉर्ट टर्म डेट फंड है वो आरबीआई बॉन्ड के नजदीक तक आपको रिटर्न दे पाएंगे, बल्कि काफी हैंडसम रिटर्न दे पाएंगे। और अगर आप किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं चाहते तो आरबीआई बॉन्ड खरीदिए। Just one clarification before we go further, Dhirendra, the floating rate bonds, I don't think the rates have been increased. I think they're still at 7.15%. Yeah, that is what he was referring, that, the bond funds have yielded much lower than 7%, so should it be preferred? जी, अगली खबर पर नजर डालते हैं। विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में इस महीने में अब तक 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने इक्विटी बाजार में 14,610 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 577 करोड़ रुपए डाले। एफपीआई ने हाइब्रिड बाजार में 8 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया, जबकि ऋण बाजार से 27 करोड़ रुपए से ज्यादा निकाले। इस तरह अक्टूबर में अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार में 15,196 करोड़ रुपए की शुद्ध राशि का निवेश किया है। Our next caller from Bhilai, Ravi Narayan, is online with us. Ravi, welcome to Market Mantra. Please put your question quickly. गुड इवनिंग धीरेन्द्र कुमार जी को भी गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन है कि मेरा पूरा ही इन्वेस्टमेंट जो है, मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ और मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट जो है एसबीआई के म्यूचुअल फंड में है, और मैं जब उसका इंक्वायरी करता हूँ तो उसमें जो है मेरा जो पोर्टफोलियो का जो बाइफर्केशन है वो दिखाता है इक्विटी में 14% और बाकी हाइब्रिड में 86%। तो व्हाट डज इट मीन? It means that 14% of your money is invested in equity fund, and the remaining money, 86% is invested in a hybrid fund, which also, depending on which fund it is, whether it is a MIP, whether it is a, I don't know which hybrid fund you have invested in, because hybrid funds generally come in 3 formats. One is dominantly equity, nominally into fixed income. The other one is, substantially fixed income, nominally into equity, and then there is the close to 50-50, the balanced advantage kind, with plus minus 10% kind of variation possible. So look at the 86% of your money in hybrid funds. Take a closer look at the underlying portfolio of those funds. Just one quick question, Dhirendra, before we end. One is that Gaurav had asked the question. Many people just accumulate funds over a period of 10-15 years. They keep on accumulating. Suddenly they realize they have 20-30 funds. Is there any tool where we can enter all our funds and then know which ones to get rid of? Yes, Value Research Online facilitates that, and let me tell you that I'm an interested party. That I'm a beneficiary of when you do this. This is a service which is available on valueresearchonline.com, where you upload your portfolio. It is automatically, you don't have to put each of your transaction. It is automatically inputted, assimilated when you upload your cash, and after that it tells you how to consolidate your investments. जी, धीरेन्द्र, कार्यक्रम में शामिल होने और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। Thank you, Dhirendra, for joining us live on this edition of Market Mantra and answering all the questions. And thank you to all our listeners for calling in and some of them for patiently waiting for their turn. Before we close this edition of Market Mantra, a reminder of the headlines. India worshipped the sun for centuries, now has become one of the leading countries in solar power generation, said Prime Minister Modi in his radio program Man Ki Baat. And FPIs have invested over 15,000 crore rupees in Indian market so far this month. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar.